God is good. All the time. And all the time. God is good. All right, repeat after me. Oh God, Oh God, help me help me to be humble today. to be humble today. Speak to me Speak to me and teach me thy word. and teach me thy word. And when you speak, may I listen May I listen and hear and hear and obey and obey and apply and apply the truths the truths to my life. to my life. Did you mean it? All right. You see, when you ask God, then you need to obey God, right? जब परमेश्वर से कुछ सवाल करते हैं तो उसका भी आपको पालन करना चाहिए. You know, sometimes people come and say, Pastor, please correct me if I'm wrong. बहुत से लोग आकर के कहते हैं, पास्टर अगर मैं गलत हो तो मुझे आप सुधारो. And when I correct them, जब मैं उन लोगों को सुधारता हूँ they don't like it. उन लोग पसंद नहीं करते So हैं. the best thing is let the Lord correct. तो सबसे अच्छा ये है कि परमेश्वर को उन लोग को करेक्ट करने दो. And when the Lord corrects, जब परमेश्वर लोगों को सुधारते हैं it will be fine. वो सही होंगे. So the Lord is going to speak to us today. तो आज परमेश्वर हम सबों से बात करने वाले हैं. And if the Lord speaks to us, अगर परमेश्वर हमसे बात करते हैं let us apply this truth in our life. और इस सच्चाई को हम हमारे जीवन में हम लागू करेंगे. And we are so thankful that this morning we are not hearing some confused voice but a written word of God. आज हम शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर का, क्योंकि हम आज ऐसे आवाज को नहीं सुन रहे जिसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन ऐसे आवाज को हम सुन पा रहे हैं जिसको हम समझ सकते हैं. And the word of God not just came at that time to Haggai, it's coming to you and to me today. और परमेश्वर का वचन केवल हगाई के समय में ही नहीं आया, लेकिन आज हमारे समय में भी आया है. And this time the word of God is more clear, more powerful, more authentic. और आज के समय परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही सच्चा है. In the Bible, when we read in Haggai chapter 1, जब हगाई के अध्याय 1 में जा पढ़ते हैं बाइबल में, and we're going to look through the chapter today. और आज हम पूरे अध्याय को हम देखेंगे. This is the second year. In the Bible says, in the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, लिखा है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हगाई भविष्यद्वक्ता के द्वारा शालतीन ये पुत्र जरुब्बाबेल के पास और यहूदा की अधिपति था, और जो यहोसादाक के पुत्र यीशु महायाजक के पास पहुंचा. So the word of God is come to Haggai for Zerubbabel. और जो परमेश्वर का वचन है हगाई के पास आता है जरुब्बाबेल के लिए. And then this message goes to the people. और ये जो संदेश है ये लोगों के पास पहुंच जाता है. But it is not a message only on that day. और ये जो संदेश है वो केवल उन दिनों के लिए नहीं था. It's a message that God is bringing to you right now today. लेकिन ये जो संदेश है परमेश्वर आज हम प्रत्येक जनों के लिए ले आ रहे हैं. Look what the verse number 2 says. वचन 2 में देखिए बाइबल क्या कहते हैं. It says, thus says the Lord of hosts. लिखा है, सेनाओं का यहोवा यही कहता है. The Lord is speaking today. आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है. And so the prophets of God said, thus saith the और Lord. परमेश्वर का नबी यूं कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है. And today we say, what saith the scripture? और आज के समय हम कहते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है. So you and I can read what saith the scripture. तो परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है उसको हम पढ़ सकते हैं. What God said is now written in the scripture. जो परमेश्वर ने कहा था वो अभी वचन में लिखा गया है. So it's not a message only in those days it was given, it's given to you and to me और ये today. जो संदेश है वो केवल उन दिनों के लिए नहीं था, लेकिन आज हमारे लिए भी है. And I think this message is relevant right now. तो मुझे ये लगता है कि जो संदेश है हमारे लिए ठहरे हुए हैं. It's a message that it is needed for our church to hear. और ये जो संदेश है हमारे लिए कलीसियाओं के लिए आवश्यकता है. It's a message that you and I should apply it to our heart. और ये जो संदेश है हमारे हृदय में हमें इसको लागू करना है. Because this message, if you don't allow it and you disobey, it can affect you in a very negative way. अगर इस संदेश को आप अगर सुनकर ग्रहण नहीं करते हैं तो आपके जीवन में ये बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव पड़ सकता है. Because when man or woman disobey God's word, Satan will use that to bring bitterness in your heart. जब पुरुष या फिर महिला जब परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं उन लोगों के हृदय में परमेश्वर के खिलाफ कड़वापन आ जाता है.
And a lot of people become bitter against God and bitter against church, bitter against the preacher, bitter against the members, not because they are obedient, but because they are disobedient. और इसीलिए आज के समय ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ, प्रचारक के खिलाफ और कलीसिया के सदस्य के खिलाफ उन लोग हो जाते हैं, कड़वा हो जाते हैं, क्योंकि उन लोग परमेश्वर का वचनों के खिलाफ हैं। Look at verse number 2. वचन 2 में देखें। Now, there were many a times when preachers speak about building church buildings or building Bible colleges or building training centers, there will be people who will always say, why do we need to build? और जब एक प्रचारक कहते हैं कि हमें बाइबल कॉलेज बांधने की आवश्यकता है, कलीसिया बांधने की आवश्यकता है, कलीसिया के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, बहुत से लोग कहेंगे हमें चर्च बांधने की क्यों आवश्यकता है। I have more people ask me, when are we going to get our own cemetery? और मेरे पास ऐसे बहुत से लोग हैं, उन लोग कहने लगते कि हमारा खुद का सेमेट्री कब हम बनाएंगे। Because we Christians, when it's almost like most of the Christians, I'm not talking about you, okay? Christians in Goa, जो क्रिश्चियन है गोवा में, it's almost like we are living so we can die and go and sleep in the cemetery. उन लोग इस रीति से जी रहे हैं कि हम जी रहे हैं और हमें दफन के लिए जगह चाहिए, उस प्रकार के लोग मरने के लिए लोग जी रहे हैं। Some people don't want to get baptized because they are afraid to make a commitment, because if I die, where will you bury me? और बपतिस्मा लेने के लिए काफी सारे लोग मरते हैं क्योंकि उन लोग वो निर्णय नहीं लेना चाहते, उन लोग डरते हैं कि जब मैं मरूंगा तो लोग मुझे कहाँ दफनाएंगे। I'll tell you what I'll do if you die. मैं आपसे कहूंगा कि जब आप मरेंगे तो मैं क्या करूंगा। I will call the makeup artist from the biggest parlor in Goa. और गोवा में जो सबसे बड़ा जो पार्लर है उसको मैं बुलाऊंगा। And put makeups on your face after you die. और आप मरने के बाद आपके चेहरे में मैं मेकअप लगाऊंगा। Put perfume on you after you die. और ऐसे परफ्यूम भी, मैं इत्र भी डालूंगा आपके शरीर में। Put the best of the clothes after you die. सबसे अच्छे कपड़े मैं आपके ऊपर डालूंगा। Will that make you feel better? क्या वो आपके लिए अच्छा महसूस होंगे? How many of you think that will make you feel better after you die? आप में से कितने से लोगों को लगेगा कि आप मरने के बाद ये आपको अच्छा लगेगा? It will make no sense. आपके लिए कोई वो मायने नहीं रखेंगे उस समय, Because once you die, you are dead. क्योंकि आप एक बार मरेंगे तो आप मर चुके हैं। You won't feel it. You will not know it. It doesn't make a difference to you. आप उस समय कुछ भी महसूस नहीं कर पाएंगे, आपको कोई मायने नहीं रखेंगे उस समय। And we Christians should not be living to die. We should be living to serve. और हम मसीहों को मरने के लिए नहीं जीना है, लेकिन सेवा के लिए जीना है। The Lord did not come to kill you, but to give you life eternal. यीशु ने हमें मारने के लिए नहीं आया, लेकिन अनंत जीवन को देने के लिए आया है। And we need to enlarge and grow and grow and grow and progress and be prosperous in the Lord. इसलिए हमें हमारे जीवन में, प्रभु में हमें बढ़ोतरी को लाना है। I told some people a couple of years ago, I'm praying that I want to build a church building for our church. और कुछ साल पहले मैंने काफी सारे लोगों को कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा था कि हम कलीसिया के लिए एक घर को बांध सके। And one mistake I did was I announced 1 week later. और एक हफ्ता बाद मैंने अनाउंस किया। But before that I had preached about rapture. और उससे पहले मैंने रैप्चर के बारे में मैंने प्रचार किया था। So I preached about how the Lord is going to come anytime. और मैंने ये प्रचार किया था कि कैसे यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। And we should be prepared and be ready. और हमें तैयार करना है और हमें तैयार रहना है। And the next Sunday I just spoke casually to people and said, I'm praying about buying a piece of property and build a church building. और मैंने ऐसे बात करते हुए लोगों से कहा कि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक चर्च के लिए, एक जमीन खरीदने के लिए, चर्च बांधने के लिए। And that individual is not there, but that individual said, Pastor, why we need to build a church building? We will anyway be raptured to heaven. और उस व्यक्तिगत ने कहा, पास्टर हमें चर्च बांधने की क्यों जरूरत है, हमारा तो रैप्चर होने वाले हैं बहुत ही जल्द। But that person asked me this question, why do we need a church building? That person was asking me when that person was building his own mansion. और उस व्यक्ति ने जब अपना खुद का घर बांध रहे थे तो उस सवाल को वो मेरे से पूछा कि हमें चर्च का बिल्डिंग बनाने की क्यों आवश्यकता है। But as a pastor I cannot just say, you're building your mansion, man. Right? I cannot say. और मैं ऐसा बोल भी नहीं सकता कि तुम खुद ही अपना घर बना रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो। But that person can get offended if I ask. अगर मैं बोलूंगा तो शायद उसको बुरा लग जाएंगे। But when it comes to church, why do we need a church? लेकिन कलीसिया के बारे में जब आ जाता है बात, तो लोग कहेंगे हमें चर्च बिल्डिंग की क्यों जरूरत है।
then we can just build a small little church. Why we need to have a beautiful one? हम एक छोटे घर बना सकते हैं चर्च के लिए, हमें इतना अच्छा खूबसूरत क्यों चाहिए? But then we will praise, oh God, you're the Almighty God. If you're Almighty, why should we not make Almighty building? और हम प्रार्थना करने देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसे अगर हम प्रार्थना कर सकते तो हमें प्रार्थना भी करना चाहिए कि हमें अच्छा कलीसिया के घर के लिए। We all make our houses look beautiful. हम हमारे घरों को हम अच्छा बनाते हैं, अच्छा करने के लिए। We continue to spend more money in making our house more posh and more beautiful and wonderful. और घर को और अच्छा बनाने के लिए हम और भी पैसा को हम खर्च करते हैं। We decorate our homes. हम हमारे घरों को सजाते हैं। Why should we not do it for the church? लेकिन कलीसिया के लिए हमें ऐसा क्यों नहीं करना है? So we need to protect our heart and not allow the devil to lie to us. इसलिए हमें हमारे हृदय को रक्षा करके रखना है ताकि शैतान हमें झूठ ना कह सके। When we give God, we should give the best to God. जब हम प्रभु को देंगे तो हमें सबसे उत्तम चीज को देना है। Are you with me right now? क्या आप मेरे साथ हैं इस समय? If when you get offended, just raise your hands. I'll make it more harder. अगर आपको बुरा लग जाएंगे तो आप अपने हाथों को उठाएंगे और मैं और कठिन बनाते रहूंगा। All right. Anyway, jokes apart, what we are seeing here is we are seeing that God Himself is speaking to the people. और यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर खुद ही लोगों से बात कर रहा है यहाँ पर। And God is saying, and the word of God comes to the prophets. और प्रभु का वचन नबियों के पास आता है। The Bible says, thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। This is not the time we should build the church. और ये ऐसे समय नहीं जहां पर हम कलीसिया को बांधे। This is not the time we should build the temple of God. और ये ऐसे समय नहीं जहां पे हम प्रभु के मंदिर को बांधे। This is the time for me to build my house. ये मेरा ऐसे समय है जहां पे मैं अपने घर को बनाऊं। This is the time to build my own kingdom. और ये ऐसे समय जो मैं अपने खुद के राज्य को बनाऊं। This is the time to make my life more posture and prosperous. और ऐसा समय जहां पे मैं अपने जीवन को सही सटीक बनाऊं। And people were like that in those days. और उन दिनों में लोग वैसे ही थे। You know what they are saying? जानते आप उन लोग क्या कहते हैं उस समय? The time is not come. समय अभी भी नहीं आया है। This is not the time. और ये सही समय नहीं है। This is not the time to build the house of God. और ये प्रभु का भवन बांधने के समय नहीं है। This is not the time to renovate God's house. और ये प्रभु का घर को सजाने का समय नहीं है। This is not the time to give for the house of God. और ये प्रभु के भवन के लिए देने का समय नहीं है। One lady once told me to pray. You know, all the examples I give is only when people leave the church, okay? So always remember, I'm not talking about anybody here. One lady once told me, Pastor, I want to support missionaries through you. एक स्त्री ने कहा कि मैं जो मिशनरियों को सपोर्ट करना चाहता हूं आपके द्वारा। So I'm planning to establish this business, and once this business starts, I will be giving you so you can support the missionaries. तो मैं एक बिजनेस बनाऊंगा, जब ये बिजनेस अच्छा होने लगे तो मैं आपको पैसे दूंगा ताकि आप मिशनरियों को सपोर्ट कर सकें। So I said, sister, I appreciate your desire, but you need to start now. If you really want to give later, you need to start now when you don't have the business. तो मैंने कहा कि मैं आपके जो इच्छाएं हैं उसको लेकर मैं दाद देता हूं, लेकिन जो आप अगर करना चाहते तो आप अभी से ही शुरू करें। Because when you start a business, when money increases, you will not give. जब बिजनेस शुरू करने के बाद जब आपके पैसे बनने लगेंगे तो उस समय आप नहीं देंगे। Because when you have little, it's easy to give little. क्योंकि जब आपके पास कुछ होते हैं तो आप कुछ दे सकते हैं। When you have more, it's very hard to give more. जब आपके पास ज्यादा रहेंगे, आप ज्यादा देने के लिए आपको बहुत ही कठिनदायक लगेंगे। Isn't it easy to give 100 rupees for offering? 100 रुपया देने के लिए आसान है कि नहीं ऑफरिंग के लिए? Isn't it a little difficult to give 2,000? 2,000 देने के लिए? Come on, I'm just trying to be of this. I'm not trying to. So please don't misunderstand me. This is the only way I can make you understand, being just normal talk, okay? Isn't it difficult to give 2,000 rupees? क्या 2,000 देने के लिए हल्का सा कठिन लगता है? Because we can do so much with that money, isn't क्योंकि it? हम उस पैसे से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। That's the fact of life. और वो जीवन की सच्चाई है। And God has prospered many, and many people are able to afford that. और बहुत से लोग जिन्हों को परमेश्वर ने आशीष किया उन लोग वो दे सकते हैं But आसानी से। for me to give that much is difficult right लेकिन now. मेरे लिए अभी देने के लिए वो बहुत ही कठिन है। For me to give 1,000 or 100 is easier. और 1000 या फिर 100 देने के लिए मेरे लिए आसान है। But to give 2,000 is a little pinch for me. लेकिन 2,000 देने के लिए हल्का सा लगता है मुझे। But to give 5,000 will be difficult. लेकिन 5,000 देने के लिए और भी ज्यादा कठिन है। Now think about giving 100 if it pinches you now and God blesses you later.
giving 10,000 will pinch you harder. आप सोचे इस समय कि जब आपके पास 100 रुपया है देने के लिए आपको कठिन लगता है, तो सोचो 10,000 जब आपके पास होंगे तो उस समय आपको कितना कठिन लगेंगे। So always begin when you have little, begin by giving little. जब आपके पास थोड़ा होते हैं उसी समय से आप शुरुआत करें। In that way, your spiritual life also will be trained, your physical life also will be trained, and you are not going to face it like a mountain as the Lord blesses you. तो अभी से आप शुरू करें, जब आपके पास कुछ हैं तो उसी से शुरू करें। जब आपके पास पहाड़े आएंगे आपके जीवन में, उसमें आपको कठिनदायक लगने So I लगेंगे। told the sisters, it's a good desire, but you need to start now because later it's going to be difficult when the Lord blesses you. उस बहन से मैंने कहा कि अभी तुम शुरू करो ताकि तुम्हें आसान लगे, बाद में जब परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे बिजनेस को आशीष करने लगे, तुम्हें कठिन लगने लगे देने के लिए। Because if you read the Bible, when God blessed people, they only backslided. क्योंकि आप बाइबल में जब पढ़ेंगे, जब लोग परमेश्वर को आशीष करते हैं, लोग क्या करते हैं उसके बाद उन लोग पीछे हट जाते हैं। They began to go back to the world when God blesses people. जब परमेश्वर लोगों को आशीष करना शुरू करते हैं, उन लोग संसार में वापस चले जाते हैं। It's a dangerous thing about prosperity in life. और जो प्रॉस्पेरिटी जो परमेश्वर आशीष करते हैं जीवन में, वो कभी कभार हमारे लिए कठिनदायक हो जाते हैं। When you have more, you become more worldly. जब आपके पास जब ज्यादा होंगे उस समय और ज्यादा संसारिक बन जाते हैं। And when God gives to God's people, He doesn't give you so you can become worldly. परमेश्वर जो है अपने लोगों को इसीलिए नहीं देता है ताकि आप संसारिक बन जाएं। God gives you so you can give for the work of God. परमेश्वर इसीलिए आपको देते हैं ताकि आप परमेश्वर की सेवा के लिए, कार्य के लिए दे सकें। Honestly, that is the only reason why God blesses God's people. वाकई में मैं कह रहा हूँ, यही एक वजह है जो परमेश्वर लोगों को देते हैं। And when that track is not followed, it causes spiritual backslidness. जब उस रास्ता को हम जब अनुसरण नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रभु से हम पीछे हट जाते हैं। But anyway, that lady established business and the business started prospering. और वो बहन ने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर दिए और वो अभी बहुत ही बड़ा बन It गया है started prospering. और वो प्रॉस्पर होना शुरू कर दिए हैं। And when it happened, it became difficult for this sister to give और ये for the mission. जब उसका बिजनेस बढ़ने लगे तो उसको सेवकाई के लिए देने के लिए कठिन लगने लगे And she never gave even 1 rupee. और उसने 1 रुपया भी कभी भी नहीं दी। Now you can say, Pastor, you're talking about money. आप कह सकते हैं कि पास्टर आप पैसे के बारे में बात कर रहे हैं इस समय, But these are serious matters, dear friend. लेकिन ये सीरियस एक विषय है मेरे प्रियो। It ought to be taught. If you're going to preach the full counsel of God's word, these things ought to be taught. अगर प्रभु की वचन को सिखाने की आवश्यकता है तो ये सच्चाई को सिखाने की उचित है। And so we should not wait until you pile up. Because think about some people, they don't ever give for God's work. आप सोचें, ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु के कार्य के लिए कभी भी उन्होंने नहीं देते हैं। And think about their spiritual life. You watch where they are. और उन लोग के आदमी जीवन को आप देखें, उन लोग का आदमी जीवन अभी कैसा है। And see how things get manipulated. और आप देखेंगे उन लोग का जीवन में चीजें कैसे मैनिपुलेट हो जाते And I हैं। want you to protect your heart from that. और मैं चाहता हूं कि आप इन सारे चीजों से अपने हृदय को रक्षा करके And रखें। never use this word. Is this the time to build? और आप इस शब्दों का कभी प्रयोग ना करना, क्या यही समय है? You should never do that. आपको वो कभी भी नहीं करना है। That's the question people asked. और ऐसा ही प्रश्न लोग आज सवाल करते हैं। Look verse 2. वचन 2 में These देखें, people say the time is not come. ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। God is saying, I will build my church. परमेश्वर कहता है कि मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा। And people are saying the time is not come. लेकिन लोग कहता है कि समय अभी भी नहीं आया है। The Lord is saying, I don't want my house to be ruined. प्रभु कहता है कि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा भवन खराब हो जाए। But the people say the time is not come. लेकिन लोग कहते हैं कि समय अभी भी नहीं आया है। The Lord says the temple need to be renovated. प्रभु कहता है कि जो प्रभु का भवन है, मंदिर है, वो उसको बनाने की आवश्यकता है। And the people say, should we do it right now? लोग कहेंगे कि क्या अभी ही हमें करना है? Never ever allow the devil to put that in your heart. आप कभी भी शैतान को वो शब्दों को आपके हृदय में जाने के लिए अनुमति ना दें। The time is not come. समय अभी भी नहीं आया है। The time that the Lord's house should be built. प्रभु का भवन बनाने का समय नहीं आया है। This is not God's word. This is man's word. ये प्रभु का वचन नहीं, लेकिन मनुष्य का वचन है। God says, I want it to be built. प्रभु कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग बनाएं, But man says, this is not the time. लेकिन मनुष्य कहता है कि ये समय अभी नहीं है। The time that the Lord's house should be built, it's not the time. प्रभु का भवन बनाने का समय अभी नहीं आया है। Only greediness and sin will make you to say such things. और लालचपन और पाप जो है आपको ये कहने के लिए मजबूर करेंगे।
The Lord said, I will build my church. प्रभु कहता है कि मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा, But He is going to build it through you. लेकिन वो आपके द्वारा ही बांधेंगे। That's why He said, go ye into all the world. इसलिए प्रभु कहता है कि तुम संसार के हर कोने में जाओ, And we win people to Christ. और हम प्रभु के लिए लोगों को हम जीतते हैं। The church is the gathering of God's people. और कलीसिया जो है प्रभु के लोग इकट्ठे होने का जगह है। In the New Testament, when Jesus walked into the temple, जब नया नियम में जब यीशु मसीह ने मंदिर की ओर गया, He saw the people doing business inside. और यीशु ने देखा कि लोग जो है मंदिर के अंदर बहुत सारे व्यवसाय को कर रहे हैं। The Bible said the Lord overthrew the tables. और लिखा है कि यीशु मसीह ने उन लोग की जो मेज को हटा दिए उस And He समय, took a whip and made a cord and beat them, the Bible और says. चाबुक लेकर के उन लोग को पीटने लग गए। The Lord had a righteous, holy anger that came upon Him. और उस समय यीशु मसीह के अंदर वो पवित्र गुस्सा आ गए। And this is what Jesus said. और यीशु ने ये कहा, This is my Father's house. ये मेरा पिता का भवन है। A place that is set apart for worship is the house of God. और ऐसा जगह जहाँ पे आराधना के लिए रखा गया है वो प्रभु का भवन है। So right now you are the church. अभी जो है तुम कलीसिया हो। But as we gather here to pray, यहाँ पर जैसे हम इकट्ठे होते हैं प्रार्थना के लिए, to worship and sing praises, प्रभु की स्तुति गाने के लिए, आराधना करने के लिए, this building that we rent, और ये जो बिल्डिंग जिसको हमने रेंट में लिए हैं, is the house of वो God. प्रभु का भवन है। A place where God's people gather is the house of God. ऐसे जगह जहाँ पे प्रभु के लोग इकट्ठे होते हैं वो प्रभु का भवन है। And we all have to bring this desire in our heart. We need to build the house of God और ये इच्छा को हमें लाने की आवश्यकता है कि हमें प्रभु का भवन बांधना है in the best way we can, सबसे बेहतरीन तरीके में जैसे हम बांध सकते हैं, through our prayers, हमारे प्रार्थना के द्वारा, through our contributions, और हमारे कंट्रीब्यूशन के through द्वारा, our availability, और जो हम कर सकते हैं सक्षम के द्वारा। and never demotivate. और कभी भी आप निराश ना होना। These people say the time is not come. और ये लोगों ने कहा कि समय अभी नहीं आया है, The time that the Lord's house should be built. प्रभु का भवन बनाने का समय नहीं आया Just है। imagine what kind of people they were. आप सोचे लोग उस समय कैसे थे उस समय, God was prospering this nation. और परमेश्वर उस देश को आशीष कर रहे थे उस In समय। fact, the Bible said they were building their houses that time. लिखा उन दिनों में वो लोग अपने घरों को बांध रहे थे Blessings were flowing upon them. और आशीष उमड़ रहे थे उन लोग के जीवन में। Because just before that, they repented and got right with God. क्योंकि उस समय कुछ समय से पहले उन लोग क्या कर रहे थे, पश्चाताप करके प्रभु के साथ सही हो गए थे। And because the people repented and got right with God, God began to bless them. क्योंकि लोगों ने पश्चाताप किए इसलिए परमेश्वर लोगों को आशीष करना शुरू किए। But the problem is when God began to bless them, जब परमेश्वर लोगों को आशीष करना शुरू they किया, went straight back to where they were. और जहाँ पे वो लोग पहले थे वहां पे वो लोग वापस चले गए। So when you read the book in the Old Testament, you see the cycle of people's life. जब पुराने में बाइबल को पढ़ते हैं, लोगों की जो साइकिल है उस चक्कर को आप वहां पे देख पाएंगे। You see they are obeying God, उन लोग प्रभु का पालन करते हैं, and God blesses them, परमेश्वर लोगों को आशीष करते हैं, and they go after idol, और मूर्तियों के पीछे जाते हैं, and they sin against God, प्रभु के खिलाफ पाप करते हैं, and then God judges them. उन लोग परमेश्वर न्याय करते हैं, God sends pandemic. और परमेश्वर बहुत सारे ऐसे दुख दुविधाओं को भेज देते They हैं, repent unto God. और उन लोग प्रभु की ओर पश्चाताप करते They हैं, cry and ask for forgiveness. प्रभु की ओर दुहाई देकर उन लोग क्षमा मांगते हैं। God forgives the nation. परमेश्वर उस देश को क्षमा देता है, And because God forgives, they obey God now. क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को क्षमा दिया, लोग अभी प्रभु का पालन करते हैं। And because they obey, God blesses them. क्योंकि परमेश्वर लोग पालन करते हैं इसलिए उनको आशीष मिलती है। And when blessings come, जब आशीष आती है उन लोगों के जीवन they में, go right back to disobey उन God. लोग वापस प्रभु की उल्लंघन करते हैं, They go back into idolatry और उन लोग वापस मूर्ति पूजा में जाते हैं and all kind of sin. और हर प्रकार के पाप। And then again, God judges them. और फिर से परमेश्वर लोग का न्याय करते हैं, God sends pandemic. और बहुत से दुखों को डालते Then हैं। they run to God and repent of their sin. प्रभु की ओर दुहाई देकर क्षमा मांगते हैं, They say, "Oh God, forgive us." हे परमेश्वर हमें क्षमा कर। God forgives them. परमेश्वर क्षमा करते हैं, They obey God. प्रभु का पालन करते God हैं, blesses them. परमेश्वर लोग आशीष He करते हैं, prospers them. उन लोग को बहुत सारे आशीषों को They go देते हैं, right back to और idolatry. वापस उन लोग मूर्तियों के पास And जाते they sin हैं, against प्रभु God. के खिलाफ पाप करते हैं, God judges them. परमेश्वर न्याय करते हैं, Sends pandemic. और दुखों को डालते He हैं, makes them a slave to foreigners. और बहुत से लोगों के अधीन उन लोग को डालते हैं, They repent. और लोग पश्चाताप करते हैं, They cry unto God. प्रभु की ओर दुहाई देते They हैं, ask for forgiveness. और क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, God forgives them. परमेश्वर क्षमा देते हैं,
They obey God. प्रभु का पालन करते हैं, God blesses them. परमेश्वर उन लोगों को आशीष करते He हैं, prospers उन them. लोगों को बहुत आशीषों को देते They हैं go right back into और idolatry and वापस sin. उन लोग मूर्तियों के पास जाते हैं। That was life of the people of Israel. और वो इज़राइल के लोगों का जीवन था। Whenever blessing, prosperity comes, they go right back into sin. जब कभी सफलता आशीषें आपके जीवन में आते हैं, उन लोग वापस से मूर्तियों के पास जाते हैं। They forget what God is doing in their life. परमेश्वर जो कुछ में लोगों के जीवन में करता है वो उन लोग भूल जाते हैं। The reason why God blesses us, so we can use it for the furtherance of the gospel. इसीलिए परमेश्वर हमें आशीष करता है ताकि हम उसको परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल कर सकें। God is not blessing us so that we may bloom and gloom and swell. परमेश्वर इसलिए हमें आशीष नहीं करता ताकि हम फैलते जाए शरीर में। God blesses us so that we may enlarge the territory of God in this world. परमेश्वर हमें इसीलिए आशीष करता है ताकि हम परमेश्वर के कार्य को ताकि हम फैला सके। Look at verse number 4, verse number 3. वचन 3 में देखें, Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lay waste? फिर यहोवा का ये वचन है कि भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा। You know what is sealed houses? क्या आप जानते हैं छत वाले घर का मतलब क्या है? With concrete. जो कंक्रीट डाला जाता है And they have chandeliers. Light. और उन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे दीपक हैं। How did they have the light? और उन लोगों के पास कैसे ऐसे दीपक They were हैं? very smart people. उन लोग बहुत ही स्मार्ट लोग थे They had sunlights coming right down inside. और उन लोग के पास सूरज की जो रोशनी किरण है वो आते हैं घरों Through में glasses decorated. और जो ग्लास उन लोग डालते हैं घरों में। We all live in sealed houses today. और हम आज उस प्रकार के घरों में हम जीते हैं We are in a rented room with a sealed. और इस समय हम ऐसे घर में जहाँ पे सारे तरफ सील्ड किया गया है And we're a comfortable place. और अच्छा घर में जहाँ पे हम अच्छा And महसूस we कर all, सकते हैं। and that's why I said, it was not just written on that day, it's written for you and for me today. इसलिए मैंने कहा कि वो दिनों के लिए लोगों के लिए नहीं लिखा गया था लेकिन हमारे लिए भी लिखा गया है। Even those days, people had concretes. और उन दिनों में लोगों के पास कॉन्क्रीट्स वगैरह थे People were more smarter and more intellectual than you and me और today. आज हम सारे लोगों से भी अधिक उन लोग ज्यादा स्मार्ट लोग थे। 400 years ago, the Portuguese built a Pato bridge overnight. और 400 साल पहले जो ब्रिटिश लोग हैं उन In लोग Pato, no, Portuguese. पोर्चुगीज लोगों ने रात भर में ही उन लोगों ने क्या किया वो ब्रिज को बना दिए In Pato. पाटों में Overnight. और रात भर में उन लोग बना दिए And that bridge is still existing. और वो जो ब्रिज है अभी भी अस्तित्व है As strong as it was. और जैसे वो मजबूत अभी भी मजबूत है। 3 years back, they built Atul Setu. और 3 साल पहले उन लोगों ने अतुल सेतु बनाया ब्रिज And we have holes and potholes and what holes there. और हम देखते हैं वहाँ पे गड्ढा वगैरह बन गए रास्ते में। People are not intellectual now. People were intellectual then. अभी आज जो लोग हैं उन लोग ज्ञानी बुद्धिमान नहीं है लेकिन उन दिनों में लोग ज्ञानी बुद्धिमान थे। And the Lord is saying, और प्रभु यहाँ पे कहता Is है it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and these house lie waste? क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? The Lord is asking you and me. परमेश्वर हमसे सवाल करता है यहाँ पे। You'll have to answer God. आपको प्रभु को ये जवाब देने हैं This is a very important message for us. और ये हम प्रतिजनों के लिए बहुत ही खास संदेश है। Is it time for you? क्या ये आपके लिए वो समय है? Why you want to build church building, Pastor? पास्टर तुम्हें चर्च बिल्डिंग बनाने की क्यों जरूरत है? By the way, how many floors you have? आपके पास घरों में कितना फ्लोर्स है? आपके How घर में? prosperous your home is? आपका घर कितना अच्छा है, महंगा है? How things are in your home? आपके घरों में चीजें कैसे हैं? Isn't God blessing you? क्या परमेश्वर आपको आशीष नहीं कर रहे Did हैं? God not prosper you? क्या परमेश्वर ने आपको आशीष नहीं किए हैं? And what are we going to do because of God blessing our lives? परमेश्वर ने जो हमें आशीष किया उसको लेकर हम क्या करेंगे? Are we going to show our gratitude towards God? क्या हमें प्रभु के प्रति हम अपने आभारियों को हम दिखाएं? Everybody okay? क्या सब लोग सही हैं? Is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? क्या तुम्हारे लिए ये अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है? Now therefore, thus says the Lord of hosts, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, consider your ways. अपने चाल चलन को तुम ध्यान करो। God is saying, consider your ways. प्रभु कहता है कि अपने चाल चलन को तुम ध्यान में रखो। Where is your foot going? तुम्हारा पांव कौन सी तरफ जा रहे हैं? Where are your thoughts going? आपकी सोच किस तरफ जा रहे हैं? Where are your minds fluttering? आपके मन किस तरफ से जा रहे हैं इस समय? What are you talking on your dining table? आपके मेज में आप घर में जब बैठते हैं उस समय आप क्या बात करते What are हैं? you speaking in the car in regard to the church and its activity? और चर्च को लेकर, चर्च के कामों को लेकर कि आप कार में जब रहते हैं उस समय आप क्या बात करते हैं? Is God happy about every conversation?
जो आप हर बातचीत करते हैं उसको लेकर क्या परमेश्वर खुश Is है? God is glorified about your conversation? क्या जो आप बात करते हैं उसको लेकर क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? The Lord says, consider your ways. प्रभु कहता है कि अपने चाल चलन को तुम ध्यान रखो, Because the devil wants to corrupt our heart. क्योंकि शैतान हमारे हृदय को नष्ट करना चाहता है। And the Lord says, I will not allow that thing. और प्रभु कहता है कि मैं ये सारी चीजों को होने नहीं दूंगा। Allow me to fill you overflowing. आप मुझे अनुमति दो ताकि मैं आपको संपूर्ण रूप से आशीष But कर if you सकूं। want me to fill you overflowing, you need to empty yourself time and time again. अगर मैं आपको परिपूर्ण से आपके जीवन को भरूं तो आपको अपने आप को खाली करना है। If you are only up to the brim and not emptying, God cannot fill you. अगर आप ऊपर की तरफ से हमेशा भरे रहेंगे, अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो परमेश्वर आपको भर नहीं सकते। Then you will be stagnant. नहीं तो आप हमेशा वहां पे स्थिर रहेंगे। Then you will be all scared every time. You'll be scared. और हमेशा आप उस समय भयभीत रहेंगे उस You'll be समय। scared of losing. और आप खोने के डर में आप भयभीत And रहेंगे। because of that fear, you will try to keep it. और उस डर की वजह से हम हमेशा उसको रखने के लिए, संभालने के लिए आप कोशिश करेंगे। And you will not enjoy it. और आप कभी भी एंजॉय नहीं कर And पाएंगे। you will not enjoy God overflowing on you. और जो परमेश्वर आपके ऊपर आशीष को उमरना चाहता है वो उसको आप कभी भी आनंद नहीं So मना God पाएंगे। says, consider your ways. तो प्रभु कहता है अपने चाल चलन को तुम ध्यान रखो, Consider your ways. अपने चाल चलन को तुम ध्यान रखो। Verse number 6. वचन 6 में देखें, You know what God is saying? जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? You have sown much आपके पास बहुत से हैं and bring in little. लेकिन आपने इतना ही लाया है। God is speaking this. परमेश्वर खुद ही कहता है यहाँ पर। How easily we can accuse pastor is always speaking about money. हम दोष लगा सकते हैं पास्टर के ऊपर, हमेशा पास्टर जो है पैसे के बारे में बात करते हैं। All those preachers, look at them, they are talking only about money. देखो वो प्रचारक सारे जो काम कर रहे हैं उन लोग बस पैसे के लिए काम करते हैं। And we can accuse and we can say and we can do whatever we want. We can do it. लोगों के ऊपर हम उंगली उठा सकते हैं, दोष लगा सकते हैं ऐसे करके। Sometime when I'm around some fellows and they will always tell me, oh pastor, that guy is using the Bible to make money. और मैं जब लोगों के साथ रहता हूँ, लोग कहते हैं कि वो बाइबल का इस्तेमाल इसलिए करता है कि वो अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। And they are talking to me about other pastors. और उन लोग बाकी पास्टरों के बारे में मुझसे बात करते He हैं। is building a church by foreign money. और वो बाहर से जो पैसे आ रहे हैं उस पैसे से वो अपने घर को बना रहे हैं। They're getting a lot of money. वो लोग बहुत पैसा मिल रहे हैं उन लोग को। You know, basically what I'm thinking back of my mind, आप क्या जानते हैं मेरे मन में मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ? they'll be talking about me when I'm not in front of them. जब मैं उन लोग के साथ नहीं रहूंगा उन लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे। They're using the Bible to build mansions. बाइबल का इस्तेमाल अपने घर बनाने के लिए वो लोग कर रहे हैं। I keep quiet. I don't rebuke them. मैं चुप रहता हूँ उस समय, मैं उन लोग को नहीं डांटता हूँ उस समय, Because back of my head, I'm thinking, क्योंकि मेरे मन में मैं सोच रहा हूँ उस समय someday they'll be talking about me. ऐसे कुछ दिन आएंगे जब उन लोग मेरे बारे में भी ऐसे ही बात करेंगे। But you know what God says? लेकिन जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? I'm also speaking about the same thing, God says. प्रभु कहता है कि मैं भी उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। God says, I'm talking to your heart right now. मैं इस समय तुम्हारे हृदय से बात कर रहा हूँ। And God says, consider your ways. प्रभु कहता है अपनी चाल चलन को तुम ध्यान रखो। You have sown much and bring in little. तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। You eat, but you have not enough. तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। You're always complaining. आप हमेशा कंप्लेन करते हैं, You're always murmuring. अपनी नाराजगी को आप बताते हैं लोगों को। You're always so scared. आप हमेशा डरे डरे रहते हैं। You're always so protecting. आप हमेशा अपने आप को संभालने रखते हैं। I mean, you cannot ever complain against God, can you? आप परमेश्वर के खिलाफ कभी शिकायत नहीं करते हैं। I cannot complain against God right now. मैं अभी परमेश्वर के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता। I actually don't like what he's saying there. जो यहाँ पर लिखा गया मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ, But I need to believe it, लेकिन मुझे विश्वास करना है, accept it, ग्रहण करना है, obey it. पालन करना है। Everything what is written is not something that I like, जो कुछ भी लिखा गया ऐसा नहीं कि मुझे सब पसंद है, but I know that is God's word. लेकिन मैं जानता हूँ कि ये प्रभु का वचन है And it's very hard. और बहुत ही कठिन है। And so what I'm going to do is, और मुझे क्या करना है? I have to keep my preferences away. और मेरे सारे ऐसे व्यक्तिगत चीजों को मुझे दूर रखकर Lord, I humble myself. और कहना है प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता I हूँ, will consider my ways. मैं अपनी रास्ताओं को मैं ध्यान में रखूंगा। Lord, help me to protect my heart मेरे हृदय को रक्षा करने के लिए मदद कर प्रभु, and help me to walk according to your word. और आपकी वचनों के अनुसार चलने में मदद कर। No children like when parents shout at them. जब माँ बाप बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं कोई भी बच्चे लोग पसंद नहीं करते। No children like when parents correct them. जब माँ बाप उन लोग को सटीक करते हैं तो कोई भी बच्चे लोग पसंद नहीं करते हैं वो।
But parents are doing the right thing. लेकिन जो माँ बाप है वो सही कामों को करते हैं। In the same way, I don't like everything that's written here, उसी रीति से जो कुछ भी यहाँ पर लिखा है मुझे पसंद नहीं है, but I know that is the right thing. लेकिन मुझे मालूम है वही सटीक है, Because God is saying that, because that's our life. क्योंकि प्रभु कह रहा है कि हमारा जीवन वैसा ही है। You have sown much and bring in little. तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। You eat, but you have not enough. तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। You drink, but ye are not filled with drink. तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। He clothed you, but there is none warm, and he that earneth wages to put it into a bag with holes. तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई से छेद वाली थैली में रखता है। Have you heard people saying, "Arey, I'm earning," and then immediately next week it's gone, everything is gone. हमने सुना रहेगा काफी सारे लोग बोलते हुए, अरे मैं कमा रहा हूँ, पैसा मिल रहा है, लेकिन अगले हफ्ते ही सब पैसा खत्म। Have you heard people saying that? क्या आपने लोगों को ये बोलते हुए सुना कभी? I can't save money. मैं पैसा बचा भी नहीं पा रहा हूँ। It's I earn, I get my salary and it's gone. मैं कमाता हूँ, पैसा मुझे मिलता है, लेकिन सब चले जाता है। We can accuse preachers, but we cannot accuse God. प्रचारक को हम दोष लगा सकते हैं, लेकिन हम प्रभु को नहीं लगा सकते। And God is speaking about you and me here. प्रभु हमारे बारे में यहाँ पे कह रहा है, This is God's word. और ये प्रभु का वचन है। And he says, consider your ways. कहता है कि तुम्हारे चाल चलन को तुम ध्यान रखो। The God who gives has the right to correct us. जो प्रभु हमें देता है उसके पास वो अधिकार भी हमें सटीक करने के He लिए। says, he that earneth wages to put it into a bag with holes. और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। Have you seen that? क्या आपने वो देखा वचन? How many of you have lost money after putting in the pocket? आप में से कितने सारे लोगों ने पैसा खोया जेब में डालने के बाद? Anybody? किसी ने यहाँ पे? 1, 2. Some of you putting lock and key on your pockets. आप में से बहुत से लोग अपने जेब में ताला लगाते हैं। Alvin also lost? I thought you never remove it. I've lost money. मैंने भी पैसा खोया बहुत बार। I remember one day, it was 31st night, many years back in 2011, और मुझे याद है 2011 Evening. के समय, उस शाम के समय, December 31st. और दिसंबर 31 में, I wanted to see the sunset. और मैं सूरज डूबते हुए देखना चाहता था उस In समय। 2011 it was. और ये 2011 की बात है। So I got my Platina bike and I drew to Miramar और Beach. प्लेटिना बाइक लेकर के मैं मिरामार बीच की तरफ गया, And I sat on Miramar Beach and I waited for the sun to set and I was praying. और मिरामार बीच के किनारे में मैं वहाँ पे बैठा रहा सूरज डूबते हुए देखने के लिए। I wanted to say thank you to the Lord for all these years, for all these blessings. और पूरे साल के लिए, हर एक आशीष के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाह रहा था उस समय। I had 500 rupees in my pocket. मेरे जेब में 500 रुपया था उस समय। So I don't know what happened. I prayed and sunset, everything became dark. I came back. I was riding back home. मुझे नहीं मालूम अचानक क्या हुआ, प्रार्थना किए मैं वहाँ पे बैठा रहा और सूरज भी डूब गया, अंधेरा हो गया और मैं वापस घर की तरफ जा रहा था। So as I was crossing the bridge, I saw Santa Monica and all they are dancing and all. और जब मैं ब्रिज क्रॉस कर रहा था उस समय बहुत से लोगों को नाचते हुए मैंने देखा। In the cruise. और वो जो जहाज होता है वहाँ पे लोगों को नाचते हुए देखा So I मैंने। removed my phone from my pocket to take a video. तो मैंने अपने जेब से फोन निकाला वीडियो निकालने के लिए। So I did a video 31st message. Every year, the last day of the year, I make a video and put it on Facebook and YouTube. और साल के आखिरी महीना आखिरी दिन में मैं क्या करता हूँ, वीडियो निकाल करके मैं YouTube में डालता So I हूँ। made a thank you video to everybody for praying, supporting, and for everything. And I put my phone back in my pocket, started my bike, and was going. और वहाँ पर मैंने धन्यवाद वाली एक वीडियो बनाए जो सपोर्ट के लिए, प्रार्थना के लिए, सारी चीज़ों के लिए मैंने धन्यवाद दे करके वीडियो बनाकर मैंने समाप्त किया और जेब में वापस फ़ोन को डाल दिया। I don't know, I have a very bad habit. Now I don't keep money in my pocket, but those days I used to keep it in my pocket. मेरे उन दिनों में गलत आदत हुआ करता था, मैं अपने फोन को मैं जेब में रखा करता था उस समय। Phone ne bhai, paisa. पैसा को मैं जेब में रखा So करता I था was उस समय। always checking and putting my hands always, even if I'm riding, I will check it. तो मैं Money is there. हमेशा हाथ डाल करके मैं हमेशा देखा करता था कि है कि नहीं But जेब that में। day when I checked, उस समय जब मैंने देखने लगा I did not see the kurkure note inside. और मैंने उस नोट को अपने जेब में नहीं पाया So the something was missing. और कुछ तो खोया है जेब में। I stopped the bike. और मैंने बाइक बंद कर दिया उस समय I put my hand in my pocket and there was no money. और हाथ को डाला मैंने और देखा कि पैसा नहीं है जेब में। I lost my 500 rupees note. और उस समय मैं 500 रुपया को खो दिया I was discouraged. और मैं उस समय बहुत निराश हो गया। I was heartbroken. 500 rupees is gone. और दिल टूट गया मेरा, 500 रुपया खो गया बोल के।
And I'm sure everybody understands the feeling when you lose money. और मैं समझता हूँ कि आप में से सारे लोग जो पैसा खोया उन लोग समझ सकते हैं दिल की दर्द को। That time 500 was big for me. और उस समय 500 रुपया मेरे लिए बहुत बड़ा था। And we all have been in that place. और हम सब लोग उन समय में रह चुके हैं। And then as I went little bit more forward, और जब मैं आगे और जाने लगा I saw 100 rupees fallen down. और मैंने नीचे 100 रुपया देखा नीचे गिरा हुआ। Unfortunately, somebody's money fell down. और किसी और का पैसा वहाँ पे गिरा हुआ था। And I took it for me. और मैंने खुद के लिए वो ले लिया। It was on the roadside. और वो रोड के किनारे पे थे। It was 31st. So I lost 500. I found 100. 500 रुपया खोया लेकिन 100 रुपया मुझे मिल गया। But many a times we have holes in our pockets. लेकिन बहुत सारे समय हमारे जेब में छेद रहता है। But you can lose money without the holes in your लेकिन pocket. बिना छेद रहे भी आप पैसा खो सकते हैं। If we are not faithful with our money. अगर हम हमारे पैसे को लेकर अगर हम विश्वास योग्य नहीं है, If we are not faithful with our giving. अगर हमारे देने में अगर हम विश्वास योग्य नहीं, If we are not faithful in obeying. और हम पालन करने में अगर हम विश्वास योग्य नहीं, And God is speaking here. और यहाँ पर प्रभु कहता है, You can argue with him as much as you want. आप प्रभु से जितना विवाद करना चाहते कर सकते हैं, But you and I will never win against God. लेकिन प्रभु के खिलाफ हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। He says, he that earneth wages to put it into a bag with holes. जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। Verse number 7. वचन 7। Second time God says. दूसरी बार परमेश्वर यूं कहता है। Remember, when God says the second time something repeating, it means better be careful. जब परमेश्वर दूसरी बार कहता है उस समय आपको सावधान बरखनी है। God says, thus says the Lord of hosts, consider your ways. सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। Consider your ways. अपने चाल चलन को तुम Think about your thoughts. तुम्हारे सोच को तुम देखो, Examine it. अपने आप को तुम देखो कैसा है। Consider your mind and your thoughts, your desires. अपने मन, अपने सोच, अपनी इच्छाओं को तुम देखो कैसा है। Verse 8. वचन 8। You know what God says? जानते हैं परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? He says, go up. प्रभु कहता है कि तुम ऊपर जाओ। He's not saying go down. प्रभु यूं नहीं कह रहा कि तुम नीचे जाओ, He says, go up. वो यूं कहता है कि तुम ऊपर जाओ। You see, God always wants God's people to climb up. प्रभु चाहता था कि परमेश्वर के लोग हमेशा ऊपर जाएं, He wants you to prosper. और वो चाहता था कि तुम बहुत ही आगे बढ़ सके। He doesn't want you to go down to Joppa. प्रभु नहीं चाहता कि तुम चोपा के नीचे जाओ, He doesn't want you to go down to Nineveh. और वो नहीं चाहता कि तुम नीचे निनवा के नीचे जाओ, He wants you and me to go up to Jerusalem. लेकिन वो चाहता था कि हम यरूशलेम की और ऊपर He जाएं, wants us to go up to the mountain. और वो पहाड़ के तरफ जाने के लिए चाहता है। God never wants you to be destroyed. परमेश्वर ने चाहता ताकि आप नष्ट हो जाएं, But He says, if you want me to bless you, you need to go up. प्रभु कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आशीष करूं, तुम्हें ऊपर जाना है। You ought to consider your ways. तुम्हारे रास्ताओं को तुम्हें समझना है, You जानना got है। to think about what you're doing in your जो life. भी तुम कर रहे हो जीवन में उसको तुम्हें समझना है। He says, go up to the mountain. और कहता है कि पहाड़ पर जाओ। You know what's happening? The house of God is ruined. जानते हैं यहाँ पर परमेश्वर का भवन जो है वो खराब हो चुका है, They're all about themselves here. और लोग हमेशा अपने बारे में सोच रहे हैं। This is the 21st century. और वो 20वीं सदी के बाद है, And this happened in the second year of Darius. और वो दराइस के राजाओं के समय हुए हैं वो बात। We are living in the 21st century. लेकिन हम 21वीं सदी में हम जी रहे हैं इस समय, And most of the Christians are like that in the world today. और आज संसार में ऐसे बहुत से लोग, मसीह लोग ऐसा ही हैं। They will say, pastor, we are church. We can be under the tree also. उन लोग कहेंगे पास्टर हम कलीसिया हैं, हम पेड़ के नीचे भी हम बैठ करके आराधना कर सकते हैं। You can be under the tree, not me. आप पेड़ के नीचे रह सकते हैं लेकिन मैं नहीं। Look what will happen if sun hits on my head. सूरज अगर आने लगे तो मेरा सिर में क्या होंगे आप सोचो। We can meet anywhere. हम हर जगह में हम मिल सकते हैं कलीसिया, But we will all have to build it for God. लेकिन हम प्रत्येक जनों को प्रभु के लिए स्थापना करना है। It's very hard for one person to do everything. और ये एक व्यक्ति के लिए सब काम करना बहुत ही कठिन है। See, one family can build his own house. एक परिवार एक घर को बांध सकता है, One individual can build his own house. या फिर एक व्यक्तिगत अपना एक घर को बांध सकता है। Yes or no? हाँ कि नहीं? You build your house. आपने अपना घर बनाए। Did I build your house? क्या मैंने आपके घर को बनाए? You build your house. आपने खुद के घर को बनाए। Did I build your house? क्या मैंने अपने आपके घर को बनाए? We all have built our own houses. हम प्रत्येक जनों ने अपने खुद के घर को हमने बनाए हैं, By the way, it was expensive. लेकिन वो बहुत ही महंगा था। Yes or no? हाँ कि नहीं? Yes or no? हाँ कि नहीं?
But when we all together bring in little for God, लेकिन हम थोड़ा करके हम जब सब लोग प्रभु के लिए लेकर के it आएंगे, is actually not expensive. लेकिन वो बहुत महंगा नहीं होंगे उस समय। When everybody gets together and a little bit and a little bit and a little bit. जब सब लोग एक साथ होकर कुछ कुछ करके प्रभु के लिए लाएंगे, But we never complain when we are building our houses. जब हम अपने घरों को बांधते हैं उस समय हम कभी भी हम कंप्लेन नहीं करते हैं। But Christians complain when we are building God's houses. लेकिन जब प्रभु का भवन बनाने का समय आता है उस समय लोग कंप्लेन करते हैं। It's a condition of the heart. वो हृदय का हम जान सकते हैं हमारा हृदय कैसा है। Everybody okay? सब लोग सही हैं? See, I'm going deep down in your heart right मैं now. आपके हृदय की गहराई तक पहुंच रहा हूँ इस समय। And there could be a cavity in your heart. शायद आपके हृदय में कैविटीज वगैरह है, And गंदगी I'm है, doing a root canal of your heart right now. ताकि आपकी हृदय की साफ सफाई कर सके। Because we are so fine with taking the whole burden of building our own houses. क्योंकि हम हमारे घरों को बांधने के लिए हम सब लोग सटीक हैं, But together to build the house of God, we have a little issue. लेकिन एक साथ मिलकर प्रभु का भवन बनाने में हमारे को दिक्कत है। But I don't think you are having an issue. लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपके पास वो सारी दिक्कतें हैं। I believe you obey the word of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप प्रभु का वचनों का पालन करते I हैं। believe that you will not allow the devil to make you like the people of Israel. और here. मैं विश्वास करता हूँ कि आप शैतान को अनुमति नहीं देंगे ताकि आप भी इस्राएल के लोगों के जैसा बन जाएं। So it's easy when the whole church gets together to build the house of जब God. पूरे कलीसिया के लोग एक साथ आकर के प्रभु के भवन को बांधने के लिए आएंगे तो वो बहुत ही सरल होंगे, आसान होंगे। Go up to the mountain आप पहाड़ के ऊपर जाएं and bring wood. और लकड़ियों को ले आएं। What you do? You bring wood. आप लकड़ियों को लेके आएं। So first go up. सबसे पहले आपको ऊपर जाना है, Go up in prayer. प्रार्थना में आप जाएं Go up in asking God. और प्रभु को आप मांगे, Go up in making your heart right with God. अपना हृदय को आप सटीक बनाने के लिए प्रभु Go से to the प्रार्थना करें। mountain. पहाड़ में जाओ And bring wood. और लकड़ियों को लेके आओ। In this day and age, और आज के समय में God would be, if God had to write right now, अगर प्रभु को अभी इस समय लिखना होता है, He will say, bring stones. प्रभु कहेंगे तुम पत्थर ले आओ He'll say, bring cement. और सीमेंट लेके आओ He'll say, bring sand. और रेती लेके आओ He'll say, bring steel. और इसे स्टील को लेकर He'll के say, आओ bring water. और पानी लेकर के आओ Bring laborers. और बहुत सारे काम करने वालों को लेके आओ। If the Bible was to be written today, that's what God would say. अगर बाइबल आज लिखना होता तो परमेश्वर वही लिखता, In those days, God says, bring woods. लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने कहा कि तुम लकड़ियों को लेके आओ, Bring wood. लकड़ी लेके आओ। God says, everybody contribute. सारे लोग कंट्रीब्यूट करें, Bring wood. लकड़ियों को लेके आओ। Then the Bible says, and build the house. और लिखा है कि तुम भवन को बनाओ। Bring the wood simply means bring all that is needed to build the house. लकड़ियों को लेके आना इसका मतलब ये है कि जो चीजें सारे चीजें जरूरत है वो सारी चीजों को लेकर के आए। Now he is telling to all the people, और वो सारे लोगों को कहता है all should go to the mountain, सब लोगों को up the mountain, और पहाड़ के ऊपर जाना है and all should bring और the सब wood लोगों को लकड़ियों को लेके आना है and build the house. और भवन को बनाना है। How many of you like to stand before God in heaven one day and say, I had the ability, but I was so stingy, and now I stink? आप में से कितने सारे लोग ये बोल पाएंगे कि जब आप परमेश्वर के सम्मुख खड़े होंगे, मेरे पास मैं सक्षम था उस समय करने के लिए, लेकिन मैं आलसी था और अभी मैं बहुत ही बदबूदार बन चुका हूँ। God says, when you have it, do it with all your might. प्रभु कहता है कि जब तुम्हारे पास है पूरे शक्ति के साथ आप वो करें, Do it all आप पूरे सामर्थ के साथ करें, with all your might, अपने पूरे शक्ति से without grudging, और बिना कोई ऐसे बात करें without complaining, और बिना कोई कंप्लेंट करें without murmuring, और बिना कुड़कुड़ाए bountifully, और पूरे इच्छुक से cheerfully, और पूरे आनंद के साथ do it all your might. और सब कुछ आप करें शक्ति से। God says, don't speak with your words, show it with your action. प्रभु कहता है कि अपने शब्दों से ना बोले ना करे, लेकिन कामों से आप दिखाएं। You know, it's so easy to say, God, I love you. ये बहुत ही आसान है बोलने के लिए, प्रभु मैं आपसे Yes or बहुत no? प्यार करता हूँ, है कि नहीं? Lord, I love you. प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूँ। And God says, I don't care. प्रभु कहता है मुझे कोई परवाह नहीं है। God said, show me that you love me. प्रभु कहता है कि तुम दिखाओ कि तुम Show वाकई me में with प्यार your करते हो। action. अपने कामों से दिखाओ Show me that you truly love me. और दिखाओ कि तुम वाकई में प्यार करते हो कि नहीं। Go up to the mountain and bring wood और पहाड़ के ऊपर जाओ और लकड़ियों को लेके आओ and build the house. और उस भवन को बनाओ। You think God doesn't have money to build the house? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के पास पैसा नहीं है घर बनाने के You think लिए? God doesn't have the wood to build the house? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के पास लकड़ी नहीं है घर बनाने के You लिए? think God doesn't have
the materials needed to build the house of God? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर के पास वो सारे चीजें नहीं है जो घर बनाने की आवश्यकता है? He owns everything. उसके वो परमेश्वर का सब कुछ है. The God who just spoke and everything came into existence. जो परमेश्वर ने जब बोल के ही सब कुछ अस्तित्व में आ गया. He's telling to the people of Israel, go up to the mountain and bring woods and build a house. और वो इस्राएल के लोगों को कहता है कि तुम पहाड़ के ऊपर जाओ, लकड़ी लेके आके तुम घर बनाओ. Why is God saying that? क्यों परमेश्वर यूं कहता है? Because when you contribute, it becomes part of you. जब कंट्रीब्यूट करेंगे वो आपका एक हिस्सा बन जाता है. And you become involved in it. आप वहां पे जुड़ जाते हैं. When you don't care about it. जब आप नहीं करते हैं उसका परवाह नहीं करते हैं, इसका मतलब. But when you contribute, you get involved in it. लेकिन जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं उसमें आप जुड़ जाते हैं. And you will show interest in it. और आप उसमें इंटरेस्ट को दिखाएंगे. You will care about it. आप उसको परवाह करेंगे. You will help it. और आप मदद करेंगे उस समय. So God wants them to understand and feel that this belongs to them. तो परमेश्वर चाहता है कि उन लोग समझे कि ये जो भवन है उन लोग के हैं. This is the place where we come to pray. और ऐसा एक जगह जहाँ पर हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं. This is the place where we gather together to worship God. और ऐसा जगह जहाँ पर इकट्ठे होकर हम प्रभु की आराधना करते हैं. As a day is going to come very soon, we do not know बहुत ही जल्द ऐसा दिन आने वाला है. if we will have ever freedom to worship in such a manner. हमारे पास शायद इस रीति से जिस प्रकार से हम आराधना कर रहे हैं उन दिनों में शायद हमारे पास वो स्वतंत्र नहीं रहेंगे. Someday just somebody need to complain about us preaching the gospel. और हमारे बारे में बहुत से शायद लोग प्रचार करते हुए शिकायत करेंगे. And somebody has to get in a wrong mind at one point. और एक पॉइंट को लेकर लोग गलतियों को निकालेंगे उस समय. And it all takes one politician for us to stop us from entering here. और एक पॉलिटिशियन जो है हमें आराम से आसानी से यहाँ पे आने से रोक सकता है. But when we will have our own house of God, लेकिन जब हमारे पास खुद का भवन घर होंगे, no one will able to point finger at us and stop us. कोई भी हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते और हमें रोक नहीं सकता. Let us not be comfortable with our comfort zone. हम हमारे आराम की जिंदगी में हमें आराम को नहीं करना है. We need to get out of our comfort zone. हमारे आराम की जिंदगी से हमें बाहर निकलना है. If you are 30-year-old, अगर आप 30 साल के हैं, if you are 40-year-old, 40 साल के अगर आप हैं, think about your son and daughter that will be worshiping in the days to come. आपके बेटा बेटियों को आप सोचें उन लोग के बारे में जो आने वाले दिनों में उन लोग जब आराधना We करेंगे. need to prepare for the next generation. हमें आने वाले पीढ़ियों के लिए हमें तैयारी करना है. Every father and mother wants to save for their children. हर एक जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ सेव करके रखना चाहते हैं. They are putting LIC वो लोग LIC में कुछ रख रहे हैं. because my life is in cemetery. क्योंकि मेरा जो जीवन है वो सेमेट्री में है. You know what is LIC means? क्या आप जानते हैं LIC का मतलब क्या है? Life in cemetery. जो जीवन है वो सेमेट्री में है. No, I'm not against LIC, please. मैं LIC के खिलाफ नहीं हूँ यहाँ पर. I'm a preacher of LIC. और मैं LIC का प्रचारक हूँ. I'm an agent of LIC. और LIC का मैं एजेंट भी हूँ. Every day I do LIC. और हर एक दिन में LIC का काम करता For हूँ. me, life in Christ is LIC. और LIC का मतलब यीशु में जीवन वो मेरा काम है. So I encourage people for saving. Remember और that. मैं लोगों को उत्साह करता हूँ सेविंग करने के I लिए. want every father and mother to save for your मैं children. हर एक चाहता हूँ कि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सेविंग करके रखे. I want every children to learn to save money from now on. और मैं चाहता था कि हर एक बच्चे लोग सेविंग करने के लिए सीखें अभी से If ही. you are not saving, you'll be a fool. अगर आप सेविंग नहीं करें तो आप मूर्ख हैं. You'll always be begging later. और आप बाद में क्या करेंगे? लोगों से मांगना शुरू करेंगे. Learn to save now. और आप अभी से ही सेविंग करने के लिए सीखें. Teach your children to save now. अपने बच्चों को भी सिखाएं सेविंग करने के लिए. Parents, save for your children. Leave a posterity for your children in the days to और come. जो माँ बाप हैं उन लोग अभी से सेविंग करना शुरू करें. But let me say this to you. लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, More than your finance and material, जो भी आपकी आर्थिक और आपके चीजें हैं, invest for your children spiritually for tomorrow. और आत्मिक जीवन के लिए अपने बच्चों के लिए तुम कल को तुम क्या करो उसको खर्चा करो. Does that really matter to us? क्या वो हमारे लिए Spiritual परवाह thing? करता है आत्मिक तौर से? That tomorrow my son and daughter should not be staying home with nothing. I want them to have a house of God so they can gather together and worship. ऐसा ना हो कि कल को मेरे जो बेटा बेटियां हैं उन लोग बिना कुछ चीजें के रहें लेकिन परमेश्वर के भवन में आकर के I'm प्रभु की building आराधना my करें. house so my son can bring his wife and live here happily. मैं अपने घर को बना रहा हूँ ताकि कल को मेरा बेटा जो अपनी पत्नी को लेकर के आए यहाँ पर रहे. I'm saving this gold and money for my daughter. When she gets married, she will take it to her house. और मैं सोना और ये पैसे मैं जमा कर रहा हूँ ताकि कल को जब मेरी बेटी शादी करेंगे अपने पास लेकर के जा सके. That's a good mother and a good father. और वो एक अच्छा माँ और एक अच्छा पिता है. But more than that, उससे भी अधिक
you should be investing for their spiritual life. और उन लोग के आत्मिक जीवन के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना है। So God says, go up to the mountain and bring wood and build a house. पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ। Look what God is saying. देखो यहाँ पर प्रभु क्या कहता है। And I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी, यहोवा का यही वचन है। I will take pleasure in it. और मैं उसमें प्रसन्न होऊंगा। You want to give pleasure to the Lord? क्या प्रभु को खुश करना चाहते हैं? You know how the Bible says God gets pleasure in 2-3 ways. और परमेश्वर 2-3 चीजों में प्रसन्न होते हैं। In the book of Revelation we read, और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, thou art worthy, O Lord, और आप ही योग्य हैं, आप ही योग्य हैं to प्रभु, receive all glory, honor and praise. सारे आदर महिमा को ग्रहण करने के लिए। Listen to me now. अभी मुझे सुने। For thou hast created all things for thy pleasure. कि आपने सारे चीजों को अपने खुशी के लिए बनाई हैं। God created for his pleasure. God created you and me for his pleasure. और परमेश्वर ने हम प्रतिजनों को अपने इच्छा के लिए बनाए हैं। Secondly, God says it is for his glory. और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर की महिमा के लिए। In the book of John chapter 15, the Bible says the Father is glorified when you win souls. यूहन्ना 15 में लिखा है, जब आप आत्मा जीतेंगे उस समय परमेश्वर को महिमा मिलती है। How easy to say in prayer, oh God, we glorify you. प्रार्थना में ये बोलना आसान है, प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। I tell what God is doing right now when we say, oh God, when I'm glorifying you. मैं आपको बताऊंगा इस समय जब हम प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपको मैं महिमा देता हूँ। God looks from up. परमेश्वर ऊपर से देखता है। He's laughing at you when you say, I glorify you. जब आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपको महिमा देता हूँ, उस समय परमेश्वर आपके ऊपर हंसता है। Because the way to glorify is by winning souls. क्योंकि प्रभु को महिमा देने का एक ही माध्यम है जो हम आत्माओं को जीतेंगे। That's what the Bible says. और वही बाइबल कहती है। You can glorify God by bringing much fruits. और आप और भी बहुत से फलों को लाने के द्वारा प्रभु को महिमा दे सकते हैं। I won't tell you the verse, but go to John chapter 15. मैं आपको वचन बता सकता हूँ, लेकिन यूहन्ना अध्याय 15 में आप जा सकते And the हैं। Bible says that's how you glorify the Father. और उसी रीति से आप परमेश्वर को महिमा ला सकते हैं। Your Father is glorified when you bring much fruit and more fruits. जब आप फलों को लाएंगे, अधिक फल को, बहुत ज्यादा फल को लाएंगे, परमेश्वर को महिमा मिलती है। We all want to glorify God with our words. हम हमारे कामों से सभी लोग प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, But God says that's not how you do it. लेकिन प्रभु कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना। The Father is glorified when you bring much fruit. जब बहुत से फलों को लाएंगे तभी परमेश्वर पिता को महिमा मिलती है। When we do soul winning, जब हम आत्माओं को जीतते हैं, that's how we glorify और God. उसी रीति से हम प्रभु को महिमा देते Did you हैं। find that verse? क्या आपने वो वचन को पाया है? It's there in John chapter 15. क्या वो यूहन्ना अध्याय 15 Look at verse number 7. वचन नंबर 7, Verse number 8. वचन नंबर 8 में देखें। Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. मेरे पिता की महिमा इसी रीति से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। Did you know there are many Christians and less disciples in the world today? क्या आप जानते हैं आज बहुत सारे से परमेश्वर के चेले, लेकिन कुछ ही यीशु के चेले हैं आज There संसार are में। many Christians, very few disciples. आज बहुत सारे से क्रिश्चियन हैं, लेकिन कुछ ही चेले हैं। You become a Christian when you believe in Jesus. जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, उस समय क्रिश्चियन बन जाते हैं। But when you obey Him and serve Him, you become His disciples. जब आप उनका पालन करते हैं, उनकी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, उस समय आप परमेश्वर के चेले ठहरते हैं। All disciples are Christians, हर एक जो चेले हैं वो मसीह हैं, but all Christians are not disciples. लेकिन सारे जो क्रिश्चियन हैं वो सब चेले नहीं हैं। Majority of Christians are spectators. आज ज़्यादातर लोग जो है उन लोग प्रभु के चेले नहीं ठहरते हैं, Very few Christians are disciples. लेकिन बहुत से कम संख्याओं में जो क्रिश्चियन है वो परमेश्वर के चेले हैं। And so Jesus said, then you will become my और disciples यीशु कहता है तभी तुम मेरे चेले ठहर सकते हो, when you bring much fruits. जब तुम बहुत सा फल लाओगे। So look at verse number 9. I know I took a long time, but next Sunday I'm not preaching. Remember that. वचन नंबर 9 में इस समय हम देखेंगे, You looked for much, and lo, it came to little, and when you brought it home, I did blow upon it. तुमने बहुत Why? Say the Lord of hosts, because of my house that is waste, and you run every man unto his own house. तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखी थोड़ी ही है। जब तुमने उससे घर ले आए, तब मैंने उसका उड़ा दिया। सेनाओं का यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ बना है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर की दौरा चला जाता है?
Think about this. If I would ask a preacher to come and say the same word without making you open the Bible. आप सोचे अगर मैं प्रचारक को यहाँ पर आने के लिए दूं और वो प्रचार करे और आप बाइबल भी ना खोलें And he says the same thing without opening the Bible and showing you the verse. और बिना बाइबल को खोले सोचो आप वही वचन को वो कहता है आपके सम्मुख And you may feel it is his word. और आपको लगे कि वो अपना खुद का वचन बोल रहा है. And if you will hear that, you will feel angry actually. अगर आप वो सुनेंगे तो आप शायद गुस्सा हो सकते हैं. Everybody will be angry. सब लोग गुस्सा होंगे. How dare the preacher say these things? कैसा उसके पास हिम्मत है ये बोलने के लिए That God will blow it out and God is going to do this and there will be a hole in my pocket and money will go away. How dare this man come and say ये that? व्यक्ति ऐसा कैसा कह सकता है कि हमारे जेब में छेद होंगे परमेश्वर हमें नष्ट कर देंगे ये कर देंगे. But you know what God is doing? क्या जानते हैं परमेश्वर क्या करता है यहाँ पे? God is coming down to our level to explain and make us understand from human point of view. परमेश्वर नीचे आकर हमारे लेवल में आकर हमें समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं. He says, this is how you will understand. और इसी रीति से आप समझेंगे. And this is what I am saying. और वही मैं बोल रहा हूँ. He's saying it will be blown away. और वो उजाड़ दिए जाएंगे. Because you are running into your own house while my house lay waste. क्योंकि तुम अपने घर को बनाने में तुम दौड़ते हो लेकिन हम मेरे भवन के लिए नहीं. Therefore the heaven over you is stayed from dew and the earth is stayed from her fruit. इस कारण आकाश से आस गिरना और पृथ्वी पर अन्न उपजना देने बंद हैं. And I call for a drought upon the land and upon the mountains and upon the corn and upon the new wine and upon the oil and upon that which the ground bringeth forth and upon men and upon the cattle and upon all the labor of the hands. मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्य और नए दाख मधु पर जो ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि पे उपजता है उस पर और मनुष्य के घरेलू पशुओं पर और उसकी परिश्रम की सारी कमाई पर की अकाल पड़ा है. So basically God is saying, see, your spiritual condition is very bad. प्रभु कहता है कि तुम्हारा आत्मिक जो स्थिति है वो बहुत ही बुरा है. You are backslided. तुम पीछे हट रहे हो. You are stingy. तुम बहुत ही आलसी हो. You are living all for yourself. तुम बस खुद के लिए जी रहे हो. And because of that, I'm going to close every prosperity that will come. और इसीलिए जो कुछ भी आशीष है तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं मैं रोक दूंगा. Verse number 12. वचन 12. Then Jerubbaal the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek, the high priest with all the remnant of the people, you know what they did? They did not get angry. They obeyed the voice of the Lord their God and the words of the pastor and the words of Haggai the prophet as the Lord their God had sent him. And the people, what they did? They feared before the Lord. तब शालतियल के पुत्र यरूशलेम की उद्देश्यता के पुत्र यीशु महायाजक ने सब बचे हुए लोगों को समेत अपने परमेश्वर की बात मानी और जो वचन उनके परमेश्वर यहोवा ने उनसे कहने के लिए हग्गई भविष्यद्वक्ता को भेज दिया था और उससे उन्होंने मान लिया और लोगों ने यहोवा का भय माना. When God speaks, जब प्रभु कुछ कहता है obey his voice. प्रभु का आवाज का पालन करें And fear him. और प्रभु का भय माने. Go up to the mountain पहाड़ के ऊपर जाएं and bring woods. और लकड़ियों को लेकर आएं So the house of God will be built. ताकि परमेश्वर का भवन बना सके. Then spake Haggai, the Lord's messenger, in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. तब यहोवा के दूत हग्गई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से ये कहा, यहोवा की ये वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ. So when the people obeyed God's voice and feared God, the Lord said, I am with you. जब लोगों ने प्रभु का आवाज को सुनकर आज्ञाओं का पालन किया, प्रभु यूं कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ. When the Lord is with us, जब प्रभु हमारे साथ रहता है He will always bless us. वो हमेशा हमें आशीष करेंगे. What do you want? Do you want prosperity with the absence of God, or you want blessing with the presence of God? क्या बिना प्रभु के उपस्थिति के आप आशीष को पाना चाहते हैं या फिर प्रभु जब रहेंगे और उसके साथ आप आशीष को पाना चाहते हैं? The Lord says, I am with you. प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे संग हूँ. Finally, I want to read this verse and close here. और अंतिम में मैं वचन को पढ़कर यहाँ पे समाप्त करना चाहूँगा. This is beautiful. और बहुत ही खूबसूरत है. And the Lord stirred up the spirit of Jerubbaal, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. You know what basically means? God just stirred them up. और परमेश्वर उन लोगों को
उन लोग को उत्साहित किए। You know, their spirit was stirred means they got excited in the Lord's work. इसका मतलब उन्होंने प्रभु के कार्य में बहुत ही उत्सुक हो गए उन लोग। They came under conviction and they made commitment and decision for the Lord's work. उन्होंने प्रभु के कार्य के लिए उन्होंने निर्णय लिया, सटीक निर्णय को उन्होंने लिया है। And so all the people got together and says, you know what? There's a revival in our heart. Let's do something for the Lord और now. सब लोग इकट्ठे होकर एक साथ होकर उन्होंने जब उन लोग के हृदय में बेदारी आने लगे, उन लोग कहने लगे हम प्रभु के कामों के लिए करेंगे। And this is what the Bible says. और ये बाइबल कहती है, And they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. और उन लोग आकर के परमेश्वर के भवनों में काम अपने प्रभु के लिए काम को करने लगे। We all have a great opportunity हम प्रतिजनों के पास बहुत से ऐसे मौकाएं हैं right now. अभी फिलहाल। We're in the midst of building a sanctuary for God's work. हम अभी जो है प्रभु के कार्य के लिए एक प्रार्थना के भवन बांधने में हम तैयारी हैं। I just jumped by faith. मैंने बस विश्वास से मैंने आगे बढ़ा। Every night when I go to sleep, हर एक रात जब मैं सोने के लिए जाता हूँ I sleep in peace. और मैं शांति में सोता हूँ, But then I wake up early in the morning लेकिन जब मैं सुबह को उठता हूँ with great fear in my heart. और दिल में वो डर रहते हुए मैं उठता हूँ My heartbeat is faster. और मैं जो दिल की धड़कन है वो बहुत ही तेज चलने लगता है I have great fear. और बहुत से डर How will this go on? ये कैसे आगे जाएंगे। I just jumped by faith. मैंने बस विश्वास से आगे बढ़ा। People may think I'm a fool. लोग शायद सोचेंगे कि मैं मूर्ख हूँ। Noah is building an ark. और जैसे नोआ ने जहाज को बनाए He never saw the rain, और कभी भी बारिश को नहीं देखे, but he's building an ark for the rain. लेकिन वो बारिश के लिए बिल्डिंग को बना रहे हैं। And one day rain came. लेकिन एक दिन बारिश आया। And every time I think about it, and the rain is going to come. जब मैं उसके बारे में सोचूं तो मुझे यही लगता है कि बारिश आएंगे। I never prayed to God for that property. और मैंने प्रभु के लिए उस प्रॉपर्टी के लिए मैंने प्रभु से कभी I प्रार्थना नहीं never किया। prayed. मैंने कभी भी प्रार्थना नहीं किया। But one lady comes and gives it. लेकिन एक स्त्री आकर वो दे देती है She says, Pastor, I want you to build a house for you. और कहती कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने खुद के लिए घर बनाएं। And in my heart, I said, first I'll build the house for God. और मेरे हृदय में मैंने यूं सोचा कि मैं सबसे पहले प्रभु के लिए भवन बनाऊंगा। What will I'll give first to the Lord. और जो मुझे मिला है मैं सबसे पहले प्रभु को दूंगा। Then I'll think about me and my family. और उसके बाद मैं अपने खुद के लिए और परिवार के लिए सोचूंगा। I can be greedy and I can use it for me. मैं लालची हो सकता हूँ और खुद के लिए इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। But God checking my heart. लेकिन प्रभु ने मेरे हृदय को परखा He says, I'm going to do it for God. और मैंने कहा कि मैं प्रभु के लिए करूंगा। And I'm going to build a Bible college, और मैं बाइबल कॉलेज बनाऊंगा, a church building, चर्च बिल्डिंग बनाऊंगा। and one day, if the Lord allows, I want to use it as a Christian school on the ground floor. और अगर प्रभु चाहे तो आने वाले दिनों में For मैं the children. बच्चों के लिए क्रिश्चियन स्कूल बनाऊंगा। All for the Lord. और सब प्रभु के लिए, Give it all for the Lord. सब कुछ मैं प्रभु के लिए देना चाहूँगा। And so, because I did not pray for it, क्योंकि मैंने उसके लिए प्रार्थना नहीं किया अब तक, but God gave, लेकिन प्रभु ने दिया। I know that God who gave me will also provide for it. मैं जानता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया सारे चीज़ों का वो मुहैया भी करेंगे। But today He is telling you, consider your ways. लेकिन आज परमेश्वर आपसे यूं कहता है कि आप अपने चाल चलन को परखें। He's telling you to go up to the mountains प्रभु आपसे यूं कहता है कि तुम पहाड़ के ऊपर जाओ and to bring the woods. और लकड़ियों को लेकर के आओ। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें इस समय। I will not call you in front, मैं आपको इस समय आगे नहीं बुलाऊंगा, but I want you to make a commitment with God. लेकिन इस समय आप प्रभु के प्रति एक निर्णय को ले सकते हैं। I want you to keep your heart right with God. मैं चाहूँगा कि आप अपने हृदय को सटीक करें इस समय। My prayer is that you will not allow the devil to whisper in your ears right now. मेरी प्रार्थना यही है ताकि शैतान आपके कान में आकर कुछ बातों को ना कहें। My prayer is God will protect your heart to be pure and sacrificial and generous. मेरी प्रार्थना यही कि ताकि आपका हृदय परमेश्वर के प्रति बहुत ही अच्छे बने और आप ताकि परमेश्वर के प्रति दान को दे सकें। You think about it. आप इस समय सोचें, Consider your ways. अपने मार्गों को आप चाल चलन को इस समय परखें। And God is speaking to you. और इस समय परमेश्वर आपके हृदय में बात करता है Listen to it. और आप प्रभु की आवाज को इस समय सुने। And what God just said to you is, जो परमेश्वर ने इस समय आपसे कहा go up to the mountain. कि पहाड़ के ऊपर जाओ। Maybe that is your bank. शायद वो आपका बैंक हो सकता है, Maybe that's your locker. शायद वो आपका लॉकर हो सकता है। Go up to the mountain आप पहाड़ के ऊपर जाएं and bring the woods और लकड़ियों को लेकर के आएं and build the house of God. और प्रभु का भवन को आप बनाएं।
Please forgive me, this is not a message I would ever love to preach. और मुझे आप क्षमा करें, ऐसा ना नहीं कि मैं इस प्रचार को मैं प्रचार करने के लिए पसंद करूं, And this is not my word at all. और ये मेरी वचन भी नहीं है, This is God's word. और ये प्रभु का वचन है, And God wants to speak to you. और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता I है। do not apologize for the message. और संदेश के लिए मैं क्षमा नहीं मांगना चाहूँगा, But it's just not my desire. और ये मेरी इच्छा भी नहीं है, But this is God's word. लेकिन ये प्रभु का वचन है। So you think about it. तो आप इसके बारे में सोचें इस समय, And you make a commitment to God in silent, in secret. और इस समय चुपचाप रहकर आप प्रभु के सम्मुख आकर निर्णय को ले सकें, And let God work in your heart. ताकि परमेश्वर आपके हृदय में काम करें। Our dearest loving Heavenly Father, हमारे प्रिय परमेश्वर पिता, I just opened up the scripture, went verse by verse. मैंने बस वचनों को लोगों के सम्मुख खोला है पिता, And I went verse by verse. और मैंने वचन से ऊपर वचन गए पिता, And I just showed them what your voice said. और आपका जो शब्द, आपका जो आवाज ने क्या कहा, मैंने उसको दिखाए लोगों को And I पिता। pray these people will fear you and obey your मैं word. प्रार्थना करता था कि ये लोग आपका भय माने और आपके राह पर चले, And that today their spirit may be stirred up. ताकि आज उन लोग की आत्मा जो है वो स्टर हो सके पिता परमेश्वर, And they will obey and build the house of God. ताकि उन लोग पालन कर कर प्रभु का भवन को बना सके। Please help them and prosper them. आप उन लोग को मदद करें और उन लोग को प्रॉस्पर करें पिता परमेश्वर। And we pray that thou will stir their spirit, O God. उन लोग की आत्माओं को आप आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर। Lord, if there is anybody sick, we pray that thou will heal them. यहाँ पर अगर कोई बीमार है प्रभु जी, आप उन लोग को चंगाई को दिलाइए। If there is anybody in need, we pray that thou will provide their needs. अगर किसी को जरूरत है पिता, उन लोग की जरूरतों का मुहैया करिए पिता परमेश्वर, O God, we pray that thou will intervene in their life and family. ताकि उन लोग अपने परिवार में और अपने जीवन में, ताकि उन लोग सब कुछ उन लोग मुहैया कर सके पिता परमेश्वर। Meet each and every needs of their life. उन लोग के जीवन के सारे जरूरतों का पूरा कर पिता। We give you all the glory and honor. हम सारे आदर और महिमा आपको देते हैं, We give you the praise. हम आपको स्तुति देते हैं। In Jesus' mighty name we यीशु pray. मसीह के सामर्थ्य नाम से हम मांगते हैं, And all God's people said, आमीन।